السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز علماء اکرام، محترم صدر مجلس فضیلت الشیخ خالد جمیل صاحب مکی اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، موضوع جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا حکم، بڑا ہی اہم موضوع ہے اور زیادہ تر لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو آج کے وقت میں کہ جس کا بینک میں کھاتہ نہ ہو، اکاؤنٹ نہ ہو اور اس کے پاس ڈیبٹ کارڈ نہ ہو اور کریڈٹ کارڈ کا اسے آفر نہ دیا جاتا ہو۔ تو اہم موضوع ہے، سننے سے متعلق ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو حلال و حرام میں تمیز کرنا چاہیے۔ مسلمان کا معاملہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پابندیوں میں گھرا ہوا ہے، وہ آزاد نہیں ہے دنیا میں۔ اس کے لیے جو آزادی ہوگی وہ جنت میں آزادی ہے، لیکن دنیا میں وہ آزاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکام کا وہ پابند ہے۔ تو ایک مسلمان کو حلال اور حرام ذرائع میں بھی تمیز کرنی چاہیے کہ وہ خرید و فروخت کے جو ذرائع استعمال کر رہا ہے، کمانے کے، کھانے پینے کے جو ذرائع استعمال کر رہا ہے، وہ حلال ہیں یا حرام۔ کیونکہ جو شخص حلال و حرام میں تمیز نہ کرے وہ متقی و پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا یہ تقوی کی نشانی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی سے دریافت کیا گیا، کسی نے کہا کہ آپ زہد کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے، زہد کے بارے میں کوئی کتاب لکھ دیں۔ تو انہوں نے کہا وقد صنفت کتاب البیوع، میں نے کتاب البیوع جو ہے تصنیف کر دی ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ میں نے کتاب البیوع میں حلال و حرام کو بیان کر دیا ہے۔ وَلَيْسَ الزُّهْدُ إِلَّا الْإِجْتِنَابُ عَنِ الْحَرَامِ، اور زہد جو ہے وہ حرام سے بچنے کا نام ہے اور حلال چیزوں میں دلچسپی کا نام ہے۔ امام ابن شہاب زہری سے دریافت کیا گیا زہد کے بارے میں کہ زہد کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ زہد کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حلال عطا فرمائے تو اس میں اللہ رب العالمین کا شکر کرے اور حرام چیزوں میں واقع ہونے سے پرہیز کرے۔ تو حلال و حرام یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، اسی پر انسان کی عبادت کا، دعاؤں کا دار و مدار ہے۔ حرام کی وجہ سے انسان کی عبادت، اس کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی عبادتیں، اس کی محنتیں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محارم سے بچو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، لوگوں میں تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب آئیے اپنے موضوع پر آتے ہیں، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بینک سے ملنے والے کارڈ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ کا کیا استعمال ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اے ٹی ایم کارڈ صرف وہ جو مشین، اے ٹی ایم مشین لگی رہتی ہے، وہاں سے پیسے نکالنے کا کام ہے۔ پھر بینک نے ڈیولپ کیا اور اپنے کسٹمرز کو مزید سہولیات دی اور بینک نے ڈیبٹ کارڈ جاری کیا۔ آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ آ گیا۔ ڈیبٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ بینک میں آپ کی جو رقم رکھی ہوئی ہے، آپ اپنی اسی رقم کو استعمال کریں گے۔ بس یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ بینک جا کر پہلے پیسے نکالتے تھے، رسید بھرتے تھے، اب اس جھنجٹ سے، اس پریشانی سے آپ کو نجات مل گئی اور آپ کہیں بھی کسی بھی اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ میں پلس یہ کر دیا گیا کہ آپ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے شاپنگ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن
पैसा कहां से कटेगा? बैंक में आपकी जो रकम जमा है वहीं से आपका पैसा कटेगा। तो जाहिर है डेबिट कार्ड का फिर शरई हुक्म क्या है? डेबिट कार्ड का शरई हुक्म यह है कि यह जायज है। हमारी मालूमात में किसी भी आलिम दीन ने डेबिट कार्ड को हराम करार नहीं दिया है, क्योंकि इसमें आप अपना ही पैसा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे। लिहाजा इसको हम ज्यादा तफसील से बयान नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं क्रेडिट कार्ड। इसको जरा तफसील से समझने की जरूरत है कि क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड में क्या नुकसानात हैं और क्रेडिट कार्ड का जो है क्या शरई हुक्म है। क्रेडिट कार्ड ये है कि बैंक ने एक कार्ड आपको फराहम किया और उसमें आपको ये सहूलत दी कि आप शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ खाना पीना चाहते हैं, कहीं बिल अदा करना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है कोई बात नहीं। बैंक ये कहती है कि भैया आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपकी तरफ से पैसे फिलहाल अदा कर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इंसान को, यार इससे अच्छी बात क्या है। आज के जमाने में जबकि हमें हमारे सगे भी कर्ज देने के लिए रजामंद नहीं होते, वो अलग बात है कि कर्ज देने के लिए क्यों राजी नहीं होते, इस वजह से कि अपना ही कर्ज वापस लेने के लिए इंसान को बहाने बनाने पड़ते हैं कि बच्चों की दवा लानी है, स्कूल फीस भरनी है, ये करना है वो, यानी अपना कर्ज इंसान को भिखारी बनकर मांगना पड़ता है, तो कर्ज देने के लिए कोई राजी नहीं होता। ऐसे में बैंक आपको ये सहूलत दे रही है कि भैया कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हमसे लो, बीवी को शॉपिंग करवाओ, बच्चों को शॉपिंग करवाओ, स्कूल फीस भरो और दूसरे काम जो आपको करने हैं करो, हम आपको पैसा दे रहे हैं, फिर आप हमें देते रहना। तो क्रेडिट कार्ड का सादा सा मतलब यह है कि आप बैंक से पैसा उठाते हैं, बैंक से पैसा कर्ज लेते हैं। अब बैंक ये कहता है कि आप हमें ये पैसा दे देना 50 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, अलग अलग कार्ड पर अलग अलग बैंक जो है वो कायम करता है कि 40 दिन में, 50 में, 60 दिन में, कुछ में लिमिट रहती है 60 दिन की भी, कि इतने दिन में आप हमें पैसा वापस कर देना। अच्छा, अगर इतने दिन में आप हमें पैसा वापस नहीं कर सके तो इसके बाद आप हमें सूद समेत पैसा वापस करना। शर्त क्या है उसमें कि आप हमें, और सूद जो होता है ना इसमें अच्छा खासा सूद होता है, तो आप हमें सूद समेत पैसा वापस कर देना। यह है क्रेडिट कार्ड की तफसील। तो जैसा कि क्रेडिट कार्ड की तफसील आई, इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्रेडिट कार्ड का शरई हुक्म जो है वो ये है कि ये जायज नहीं है, ये हराम है। क्यों हराम है? सूद की वजह से ये जायज नहीं है, क्योंकि आपने, भाई सूद में यही तो होता है ना कि हमने कर्ज ले लिया और हम कर्ज सूद के साथ लौटाएंगे, जो सूद पर कर्ज देने वाले होते हैं वो सूद के साथ अपनी रकम को वापस लेते हैं, तो इसमें सूद पाया जाता है। सूद पाए जाने की वजह से क्रेडिट कार्ड जो है हलाल नहीं है, हराम है। बाज उलमा ने इंतहाई मजबूरी की हालत में, जैसे मैं शेख मकसूदुल हसन फैजी हफिज़हुल्लाह की वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि इंतहाई मजबूरी की हालत में इजाजत दी है। ठीक है, ये मैं इख्तलाफ की नौइयत या बाज उलमा की राय रखने की हैसियत से बयान कर रहा हूं, ये नहीं कि आप अमल करें कि और उलमाए देवबंद में से भी बाज ने जो है मजबूरी की कैद लगाकर जो है इजाजत दी है कि अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है कि उसके बगैर काम नहीं चल रहा। दलील क्या दी है शेख ने इसकी? क्या इसके ताल्लुक से फतवा अपने दिल से पूछे इंसान, मजबूरी है या नहीं है, कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि बिना क्रेडिट काम के आप नहीं कर सकते। तो ये मैंने बाज़ उलमा की राय रखी है, लेकिन राजे और बेहतर यही है कि क्रेडिट कार्ड का इंसान इस्तेमाल ना करे। भाई क्या ऐसी मजबूरी होगी, ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? क्या क्रेडिट कार्ड के बगैर उसका पेट नहीं भर सकता, खाना नहीं खा सकता? क्या उसको वो लिबास नहीं पहन सकता? ऐसी क्या उसकी मजबूरी हो सकती है? अगर कोई चीज ऐसी है जो वो क्रेडिट कार्ड के बगैर नहीं ले पा रहा तो ना ले उस चीज को न ले, अपने ईमान को बचा कर रखे। और
अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की जुस्तजू करे, उस चीज से बच जाए। तो ऐसी भी क्या मजबूरी हो सकती है, लिहाजा बेहतर यह है कि वो उससे बच जाए। क्रेडिट कार्ड में के नुकसानात क्या हैं? क्रेडिट कार्ड जो है ये आपको मेरे भाइयों और बहनों अपने जाल में फंसा लेता है। क्रेडिट कार्ड अगर आपने बैंक से लिया और उसकी बुनियाद पर आपने शॉपिंग कर ली या आपने बैंक से अमाउंट ले लिया, तो समझिए आप सूद के बहुत बड़े जाल में जो है फंस चुके हैं। आइए क्रेडिट कार्ड के नुकसानात आपके सामने रख दें। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इसमें सूद पाया जाता है, और सूद सूद लेने वालों के बारे में और सूद देने वालों के बारे में, यानी सूद से जुड़े होने के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया है? अल्लाह और उसके रसूल से जंग है ये। तो सबसे बड़ा नुकसान इसमें क्या है कि ये सूद है। नंबर 2, बाद लोग कहेंगे कि भाई बैंक ने जो हमें लिमिट दी है 50 दिन की, तो हम क्या करेंगे कि इसी 50 दिन के अंदर जो है बैंक का कर्ज हम अदा कर देंगे। तो इसमें सूद तो नहीं हुआ, हमने सूद तो नहीं दिया, 50 दिन के हम अदा कर देंगे। जैसा कि जिन उलमा ने यह बात कही है कि मजबूरी की हालत में जायज है, तो उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि जबकि उसको यकीन हो कि इतनी मुद्दत में मैं बैंक का कर्ज अदा कर दूंगा, उसको ये अपने ऊपर एतबार हो, यकीन हो अपनी कमाई पर, अपने कारोबार पर कि मैं इतने दिन में बैंक का ये कर्ज अदा कर दूंगा, तो वो बहालत मजबूरी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि भाई हमने 50 दिन में जो है अदा कर देंगे, हम सूद देंगे ही नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, इसमें चीज ये है कि आप मुतय्यना मुद्दत में रकम तो अदा कर दे रहे हैं, लेकिन जब आपका मुआहदा हुआ बैंक से, आप क्रेडिट कार्ड लेने गए या क्रेडिट कार्ड वो आपको देने आए, तो जब आप साइन करते हैं तो उसमें जो शराइत होते हैं उसमें आप मुआहदा इस चीज पर करते हैं कि 50 दिन में अगर मैं 50 दिन में अगर मैं रकम अदा नहीं कर सका तो मैं सूद दूंगा। तो सूद पर आप मुआहदा करते हैं, सूद देने पर रजामंदी का इजहार करते हैं, तो ये डील ही कैंसिल हो गई, ये डील खराब हो गई। हराम शर्त जिस डील में हराम शर्त मौजूद हो वो इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आपका रजामंद होना कि मैं सूद अदा करूंगा, ये भी जो है हराम ही के दर्जे में आता है। तो 50 दिन में अगर आपने अदा कर दिया तो सूद देने का गुनाह तो आपको नहीं मिलेगा, सूद देने का वो गुनाह तो नहीं मिला क्योंकि आप सूद, लेकिन आपने उस शर्त पर रजामंदी का इजहार किया है, उसके मुताबिक गुनाह आपको जरूर मिलेगा। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड में फजूल खर्ची है। भाई आपके पास कैश होता है या आपके पास डेबिट कार्ड होता है तो उसके जरिए जब आप खरीदारी करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है या मेरी जेब में इतना पैसा है और मैं इतनी शॉपिंग करूं, इतना खर्च करूं, पूरा महीना मुझे चलाना है, लिहाजा मुझे किस तरीके से समझदारी से अपने इस खर्च को पूरे महीने तक ले जाना है, ठीक है ना। ये तमाम चीजें जहन में आती हैं जब हमारे पास से रकम जाती है। क्रेडिट कार्ड में क्या है कि ये होता है कि भाई 50 दिन में अदा करना है तो कोई बात नहीं, ये भी ले लो, वो भी खरीदारी कर लो, बीवी ने कहा ये शॉपिंग चलो खरीद लो, बच्चों ने जिद की ये चीज चलो कोई बात नहीं ले लो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, यार अदा कर दूंगा आराम से, अभी तो मुझे नहीं देना पड़ रहा, 50 दिन में आराम से अदा कर दूंगा। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो फजूल खर्ची का रास्ता दिखाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमम महसूरा। ना तो अपने हाथों को गर्दन से बांध लो, यानी बिल्कुल बखीली और कंजूसी इख्तियार करो, खर्ची ना करो घर वालों पर, और ना ही अपने हाथों को एकदम खोल दो, यानी खूब फजूल खर्ची करने लगो, ऐसा भी मत करो कि फिर तुम जो है काबिल मलामत और आजिज होकर बैठ जाओगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड की वजह से जो है इंसान फजूल खर्ची करता है। नंबर 4,
क्रेडिट कार्ड पर जो आप सूद देते हैं, सूद जो रकम अगर मुतय्यना वक्त में आप नहीं अदा कर पाते तो सूद देते हैं। कुछ बैंक तो 2.5% लेती हैं, कुछ 3%, 3.5%, 4% भी जो है लेती हैं कुछ बैंक। तो अगर मुतय्यना मुद्दत में आप अदा नहीं कर पाए तो एक तो आप सूद दे रहे हैं और फिर वो सूद जो है ना उस पर भी सूद लगेगा। अगर आप अदा नहीं कर पाए तो आगे जो सूद आपका बढ़ता जा रहा है उस पर भी प्लस सूद लगता चला जाएगा। नंबर 6, अगर क्रेडिट कार्ड खो जाता है, देखिए बहुत अहम चीज है, क्रेडिट कार्ड अगर खो जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड अगर खो गया तो आपकी गर्दन पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है, बहुत बड़ा बोझ। क्रेडिट कार्ड आपका खो गया तो कोई भी शख्स आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके लाखों की शॉपिंग कर लेगा और वो सारा अदा किसे करना पड़ेगा, आपको, क्योंकि बैंक में एड्रेस प्रूफ सब कुछ आपका दर्ज है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि भाई ओटीपी चाहिए, अगर हम कुछ शॉपिंग करते हैं कार्ड से तो हमारे पास ओटीपी आता है, तो मोबाइल तो हमारे पास है। तो मेरे भाइयों, नेशनल जब आप अपने मुल्क में शॉपिंग करते हैं तो ओटीपी आता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल साइट्स पर जाकर शॉपिंग करते हैं तो वहां ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर कार्ड पर जो 16 नंबरात का डिजिट होता है वो और सीवीवी नंबर ये देते हैं। एक झटके में कोई भी शख्स आपके क्रेडिट कार्ड से 3 लाख तक की तकरीबन जो है शॉपिंग कर सकता है। तो आपकी गर्दन पर एक भारी कर्ज पड़ गया अगर क्रेडिट कार्ड खो जाता है। तो इंटरनेशनल साइट्स पर जाकर या वहां जाकर आप शॉपिंग करते हैं तो ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 7, अगर आप क्रेडिट कार्ड को कैश कर लें, पैसा ले लें कि भाई 50,000 निकाल लूं, और मालूम है इंसान बड़ा कमजोर है, इंसान कमजोर है, उसके पास जब मजबूरी होती है तो वो क्या करता है कि यार कोई बात नहीं चलो निकाल लेते हैं। अगर नहीं है ऑप्शन उसके पास तो वो सब्र किए रहेगा, परेशानियां उठा लेगा, लेकिन ऑप्शन है वो कमजोर है, चलो इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप कैश कर लेते हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इतना रुपया क्रेडिट कार्ड से निकाल लेते हैं तो उस पर सूद की शरह और बढ़ जाती है। शॉपिंग में थोड़ी कम रहती है, इस पर सूद की शरह थोड़ी सी और बढ़ जाती है। अच्छा, जब शॉपिंग करते हैं तो 50 दिन की जो मुद्दत मिलती है कैश करने पर वो मुद्दत भी खत्म हो जाती है और पहले ही दिन से आप पर सूद लगना शुरू हो जाता है। नंबर 8, क्रेडिट कार्ड का सालाना चार्ज भी किया जाता है। कुछ बैंक 500, कुछ 1000, 5000 तक, बाद बैंकें 5000 तक चार्ज करती हैं। नंबर 9, बाद लोग समझते हैं हमें तो क्रेडिट कार्ड फ्री में मिला है। देखिए, बैंकें कस्टमर को फंसाने के लिए बहुत कुछ करती हैं। कैशबैक वाला जो सिस्टम है उसमें भी ग्राहक को फंसाया जाता है। 500 रुपए कैशबैक मिलेगा, 200 रुपए कैशबैक मिलेगा। तो जो आपको वो कैशबैक देते हैं वो रकम मामूली होती है, उस पर जो सूद वसूल करते हैं वो भारी होता है। तो वो अपनी तरफ बढ़ाने, अपनी तरफ खींचने का एक जरिया होता है, कैशबैक मिलेगा, और उस पर फिर लिमिट लगा देते हैं, इतने तक की शॉपिंग करो, आपका पॉइंट्स जमा हो रहे हैं, फिर आपको जो है ये फायदा, ये इसको इन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक तरफ से बढ़ाते हैं कि और आगे गुनाह की तरफ थोड़ा और बढ़ो, थोड़ा और बढ़ो। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें जो है कार्ड मिला है, फ्री मिला है, लेकिन आप देख लीजिए टर्म्स और कंडीशन उसकी जो होती है, कार्ड जो फ्री मिलता है वो सिर्फ 1 साल के लिए फ्री होता है, 1 साल के बाद फिर उस पर चार्ज लगना शुरू हो जाता है। तो ये भी बैंक का एक मुआवजा देने का अंदाज है कि भाई फ्री कार्ड हम दे रहे हैं, 1 साल के बाद वो चार्ज लेते हैं। नंबर 10, एक बड़ी अहम चीज, नंबर 10 में अगर क्रेडिट कार्ड से आप ओवर लिमिट शॉपिंग कर लेते हैं, ओवर लिमिट, बैंक ने आपको लिमिट दी 1 लाख की, 50,000 की, 3 लाख की, जो भी उससे ज्यादा, कभी होता है ना कि भाई 50,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, 55 की भी हो जाती है। 1 लाख बैंक ने लिमिट दी है, आपने कहा यार 1,10,000 की कर लें, बैंक कहती है कोई बात नहीं भैया कर लो, 1,10,000 की शॉपिंग कर लो। लेकिन ये ओवर लिमिट जो गया ना, इस पर इतना सूद लगता है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। भोलेपन में कभी इन चीजों में फंस नहीं जाना, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, इतना सूद लगता है। ये ओवर लिमिट वाला जो होता है, इस पर एक तो सूद की शरह बढ़ जाती है,
18% GST लगती है। गोया के पूरे तरीके से इंसान, इसी वजह से कितने नौजवान ऐसे हैं जो मुलाजिमत सिर्फ क्रेडिट कार्ड का सूद अदा करने के लिए कर रहे हैं, उनकी जिंदगी इसी में फंस कर रह गई। क्यों कर रहे हैं कि यार किस्तें भरेंगे, खाना पीना चलता रहे और किस्तें हर महीने वो क्रेडिट कार्ड की किस्तें भर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अपने आप को हराम से बचाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले ईमान को हलाल ज़राए इख्तियार करने का हुक्म दिया है और हलाल खाने पीने का हुक्म दिया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं, रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अय्युहन नासु इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीना फ़क़ाल या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सुम्मा ज़करा अर्रजुला युतीलु सफ़रा अशअत अग़बरा यमुद्दु यदैहि इला समाई या रब्बी व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हरामी फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। रवाहु मुस्लिम। फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, अल्लाह पाक है और पाक ही को पसंद करता है, और अल्लाह ने अहले ईमान को उसी चीज का हुक्म दिया जिसका रसूलों को हुक्म दिया, रसूलों को भी हुक्म दिया हलाल खाओ, अहले ईमान को भी हुक्म दिया हलाल खाओ। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी का जिक्र किया, वो लंबा सफर करता है, हालत उसकी ये है, गुबार आलूद है, परेशान है, आसमान की तरफ हाथ उठाए हुए होता है और दुआ करता है, ऐ मेरे रब। यानी उसके तमाम औसाफ, उसकी तमाम कैफियत और उसकी हैयत ऐसी है कि अल्लाह को उसकी दुआ जल्दी कबूल करनी चाहिए। सफर में है और सफर में अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करता है। परेशान हाल है, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा, तो अशअसा अगबरा से पता चलता है परेशान हाल है, परेशान हाल की अल्लाह दुआ जल्दी कबूल करता है। आसमान की तरफ हाथ उठाए हुए है, और हाथ उठाना ये दुआ की कबूलियत, इसमें चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से गिरियावजारी कर रहा है, यानी तमाम चीजें उसमें ऐसी पाई जाती हैं कि अल्लाह उसकी दुआ को जल्दी कबूल करे, लेकिन साथ ही उसका खाना हराम होता है, उसका पीना हराम होता है, उसका लिबास हराम होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल कर सकता है? तो मेरे भाइयों, ईमान को बचा कर रखिए, अपनी इबादतों की हिफाजत कीजिए, अपनी दुआओं की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें हलाल ज़राए का इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।